This is for class 8. Uh, the chapter number is 8. The name of chapter is metal and non metal. So आपका बुक्स में आपका चैप्टर में आपको मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो डिटेल्स है वो रिलेटेड टू फिजिकल रिलेटेड बताया, बट हायर क्लासेस आपको मेनली केमिकल रिलेटेड भी समझना है. सो आई वुड लाइक टू गिव बेसिक ओवरव्यू for chemical related concept. So for that you have to know about atoms and element. So before I start what is atom, what is element, I would like to give again basic overview of matter. So matter means anything which has mass and occupies some space. Anything, digs, bends, soil, anything in the universe are called matter. So matter are mainly made by molecules. Remember molecules, and molecules are made by what? Atoms. And atoms are made by proton, neutron and electron. Proton, neutron and electron. So I would like to give one example. For example, water is matter. Water. You can say ice. So water is made by this molecule, H2O molecule. And this molecule, water molecule is made by two atoms, hydrogen and oxygen. And these are atom, actually atom or element, atom, and this is called molecule, and this is matter, and these atom are always made by proton, neutron and electron. Very, very important. Remember, the number of matters or molecules are infinite. You cannot count in the universe, but the number of atoms are limited. Till now 118 atoms are discovered. So take command regarding this atom, because whole universe are made by this atom. So I would like to give some name of atom. For example, hydrogen, the lightest atom, atomic number 1, helium 2, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, potassium 19, argon 18, potassium 19, calcium 20. So try to remember up to calcium. The atomic number means number of proton, and generally for neutral atom the number of proton is equal to number of electron होता है for neutral element, neutral atom. आप लोग याद रखना, try to remember, proton and neutron are placed in nucleus and electron are moves in orbit. So we have to know the electronic configuration. For example, hydrogen. The electronic configuration for hydrogen is this. Only one orbital are there. Remember, in first orbital electron capacity is 2 maximum, and second 8, third 8, in fourth 18 actual. According to boards a little bit different. अगर जाकर रूल वगैरह मिलेगा तो अब इतना खाली समझने से हो गया, इतना तक समझने से हो जाएगा. 20 के लिए हम लोग इतना काफ़ी है. सो हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 है,
और हम लोग को एक बात आपको याद रखना है, एटम जो है स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होने। सो आउटर मोस्ट सेल मतलब हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज कंसिडर्ड एज आउटर मोस्ट सेल। सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, हम लोग को और 1 चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है। समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही जरूरी है, आपको हायर क्लासेस के लिए भी जरूरी है और यहाँ पे भी बेसिक बनाने के लिए आपको जरूरी है। सो हाइड्रोजन कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट करने से आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में या तो जीरो करना है, खाली करना है, या तो फुल करना है। खाली करने के लिए डोनेट कर सकते हैं, 2 करने के लिए शेयर करके 2 कर सकते हैं, नहीं तो गेन करके 2 बना सकते हैं। सो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल कब होता है? जब शेयरिंग का गेन होता है। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्योंकि आपको चैप्टर का नाम है मेटल नॉन मेटल, सो आपको जानना है केमिकली। सो नॉन मेटल के लिए क्या होता है? शेयर होना पड़ेगा, नहीं तो गेन होना पड़ेगा, शेयर और गेन बोथ। और मेटल के लिए आपको रूल क्या है केमिकली? आपको डोनेट होना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल जनरली। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जनरली, एक्सेप्शनल केसेस आल्सो देयर। सो हाइड्रोजन डोनेट भी करता है बट गेन का शेयर भी करता है, दैट्स व्हाई गैसेस स्टेट में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए नॉन मेटल। मैं नॉन मेटल पे NM बोलूंगी, NM नॉन मेटल। सेकेंड वन इज हीलियम। हीलियम, सो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 है, सो 2 चाहिए। सो इसलिए हीलियम बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किस लिए क्यों करता है? मेटल क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल है। सो हीलियम कभी भी किसी एटम का साथ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए ये हमेशा गैसेस फॉर्म में रहेगा, सिंगल में रहेगा। दैट्स व्हाई हीलियम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, रिमेंबर, मोनो में सिंगल, एटॉमिक गैस एटॉमिक फॉर्म में रहता है। सो इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में है, नॉन मेटल। नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एटॉमिक नंबर कितना है? 3। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होगा, तो 2 तो हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में 1 है। हियर you have to understand, we know that in second orbital electron capacity is 8, but lithium has only 1 electron in its outermost shell. So ये शेयर व गेन नहीं कर सकता है। शेयर करने से 7 कौन देगा इसको? और गेन करने से भी 7 गेन करना पड़ेगा, इसका पास इतना एनर्जी नहीं है। सो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर देगा तो लिथियम प्लस फॉर्म होगा। लिथियम प्लस दे रहे हैं, लिथियम प्लस 1 इंपॉर्टेंट, इसलिए ये मेटल है, मेटल लिथियम इज मेटल, डोनेट कर रहा है, डोनेट लिख देता हूँ, डोनेट। फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 होगा, लेकिन सेकंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है? 8। गेन नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। गेन करने के लिए 6 गेन करना होगा, शेयर करने से भी 6 शेयर करना पड़ेगा। सो बेटर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वैलेंसी कितना होगा? 2 वैलेंसी होगा। सो वैलेंसी 2 को ऐसे भी ये भी बताता है, बेरिलियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। सो डोनेट करना मतलब मेटल, तो बेरिलियम आल्सो मेटल, लिथियम मेटल है। नेक्स्ट बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इन फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 5 से 2 जाएगा तो 3, इन आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन आर देयर। सो ये इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट करता है, सो बोरॉन प्लस 3 आयन फॉर्म करता है। सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो इट इज आल्सो मेटल। एंड नेक्स्ट वन इज कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होगा, सेकेंड में आपका 4, एंड आउटर मोस्ट सेल में कितना होना है? 8। सो डोनेट करने के लिए 4 डोनेट करना पड़ेगा, और शेयर करने से भी 4 शेयर करना पड़ेगा, और गेन करने से भी 4 गेन करेगा। और गेन बट डोनेट नहीं हो सकता कार्बन का गैस में, इतनी एनर्जी नहीं है, इसीलिए कार्बन कैन ओनली शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कार्बन का इतना कंपाउंड मिलेगा इस कार्बन का वजह से, 4 वैलेंसी का वजह से, जिसका वजह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म होता है, लार्ज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, सब आपको आगे जाके मिलेगा। सो इतना याद रखना, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, सो नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। सो आपको ऐसा करके आप 20 तक लिख के देखो, याद रखना आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 होने से डोनेट होगा, डोनेट होने से मेटल, और गेन व शेयर व नॉन बॉन्डिंग होने से नॉन मेटल। सो एटलीस्ट अब 20 तक आइडेंटिफाई होना है व्हिच आर मेटल व्हिच आर नॉन मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, मेटेलिक आयन। नॉन मेटल या तो शेयर करता है या तो गेन करता है। अभी मेटल डोनेट करता है, नॉन मेटल गेन करता है। अगर मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो मेटल डोनेट करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। सो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म, आयोनिक, क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो दोनों का भी बॉन्डिंग होता है। सो दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग। और नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल का खुद के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। So you will get regarding ionic bond, covalent bond details in higher classes. So these are a little bit concept regarding chemical properties of metal and non-metal. And one thing, generally you will get some reactions regarding chemical properties. Reaction कैसे form करता है, reaction form करने के लिए आपको जानना होगा कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन शेयर करता है, कौन गेन करता है। तो रिएक्शंस पार्ट का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप प्रैक्टिस करो अप टू 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू 20 ट्राई टू प्रैक्टिस। मैं आगे जाके रिएक्शंस कैसे होता है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, हाउ रिएक्शंस टेक प्लेस में डिटेल्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है।